there is a company called ABC Limited. Okay, they reported a net profit after tax of how much? 25 lakh rupees. You can speak along with me when I ask you the number. Okay, so how much profit the company has made? 25 lakhs for the financial year 31st of March 2024. Okay, the company has the following securities outstanding throughout the year. So company had the following securities. You know how they have financed their business. Common share outstanding, that's equity shares. 5 lakh shares were equity shares. Okay, 5 lakh कितने? Equity shares. Then convertible preference shares 50,000. So these are preference shares, but they can be converted into equity. Okay, how many shares? 50,000 shares. Each preference shares pays 10 rupees dividend per year. So every preference share pays 10 rupees as dividend. Okay, and is convertible into 2 equity shares. If you are having preference shares, then they will be converted into, each preference share will be converted into how many shares? 2 equity shares. And what is the value of each preference shares? 10 rupees. Okay, so and how many preference shares the company has? 50,000. Then, and how much dividend it pays? 10 rupees. Then convertible debentures. So first we had convertible preference shares, now we have convertible debentures. That means company has issued shares, they will get converted into equity shares. Okay, 10 lakh rupees debentures. Okay, total face value was this thing 8% annual interest. So that means company is paying 8% interest, and there is a tax of 30% on company. Each 1,000 debenture is convertible into 25 equity shares. Okay, so if you want to know how many debentures, so divide 10 lakhs with 1,000, you will get total number of debentures. Okay, multiplied by 25, so that much of equity shares will be issued by the company. Okay, stock options. Now company has certain stock options also. 1 lakh stock options. That means suppose they have given stock options to the employees that they will get shares are outstanding with an exercise price of 50 per share. So that means the employee who wishes to buy the share of the company, he has to pay only 50 rupees and he can, take the share of the company. Even the share is 200 rupees, they will get the share at 50 rupees. Okay. Now, the average market price for the company's equity share during the year is 80. So abhi 80 rupees ka share chal raha hai, but they have given an exercise offer to its employees or whosoever at 50 bucks. So that means those people are going to always, exercise the right, because they are getting something which is, today 80 at 50. Okay. Now requirements: calculate the basic EPS. First, we have to calculate the basic EPS. Second, calculate the diluted EPS. Okay. So that means first we are going to calculate the EPS based on 5 lakh shares. What are the total number of shares the company issued? 5 lakhs. So if we take the net profit divided by 5 lakhs, we will have the EPS, basic EPS. But then if you have to calculate the diluted EPS, so what we'll do, we'll look at all these things. If all these things came true and they are converted into shares, how much will be the EPS, new EPS of the company? अब EPS कितना हो जाएगा अगर ये सारे के सारे options they were exercised and they are converted into equity shares, so the equity base will go up for the company. So EPS is going to fall or drop? EPS बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना. देखो EPS कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, सो वी हैव अ न्यूमरेटर प्रॉफिट एंड डिनोमिनेटर एज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. So since the equity base is going to go up and profit is going to fall, profit is going to remain the same more or less. So the EPS is going to go down, isn't it? So that's why it's called diluted EPS. That's why it is called diluted, because the EPS is getting diluted because of the shares which company is going to issue in lieu of stock options, in lieu of convertible debentures, in lieu of preference shares. So no more number of shares will be issued, okay, and it will further drop the earning per share of the company. Is that okay? Everybody has followed? समझ में आया आपको? No sir. हैं? सर वो EPS समझ में आ गया, कैलकुलेटेड डाइल्यूटेड EPS नहीं समझ में. हाँ, तो डाइल्यूटेड EPS का क्या मतलब होता है? डाइल्यूटेड EPS का क्या मतलब होता है? डाइल्यूटेड EPS का मतलब ये होता है कि आपका EPS डाइल्यूट हो रहा है, गिर रहा है. उसको हिंदी में बता दिया जाए तो ऐसा होता नहीं है, बट वो हम कह रहे हैं गिर रहा, कम हो रहा है.
ईपीएस। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपके शेयर बढ़ रहे हैं। आपके शेयर 5 लाख थे, ऊपर देखो कितने शेयर थे कंपनी के, 5 लाख। लेकिन कंपनी ने कई सारी ऑप्शंस दी हुई थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, स्टॉक ऑप्शन दी हुई थी कि वो अपने शेयर ले सकते हैं कंपनी के। ओके, उनको एक राइट दिया हुआ था कि उनको शेयर मिल सकते हैं अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स, अगेंस्ट द डिबेंचर्स। दे आर ऑल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो अगर सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएं और शेयर होल्डर बन जाएं कंपनी के, तो आपका जो बेस है वो तो बढ़ा जाएगा आपका, है ना। सपोज ये न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर है आपके, ये है प्रॉफिट और ये है शेयर्स, तो यहां तो एडिशन हो जाएगा ना इसकी वजह से। न्यूमरेटर तो प्रॉफिट तो सेम रहेगा कंपनी का, और शेयर नीचे बढ़ गए तो ईपीएस तो गिर जाएगा आपका, तो डाइल्यूट हो जाएगा ईपीएस। अब समझ में आया नहीं आया? हैव यू फॉलोड? सो डाइल्यूटेड ईपीएस विल बी नॉर्मली लेस और मोर? आई एम आस्किंग यू, लेस or more? Less. So we have to calculate what will be and assumptions. So we'll come back to the assumption, okay, later on. पहले हम कर लेते हैं, फिर assumption आके revisit करेंगे। वैसे क्या कहता है assumption में, use treasury stock method for stock options। वो बोल रहा है जो स्टॉक ऑप्शन दिया हुआ है उसके लिए ट्रेजरी स्टॉक ऑप्शन मेथड अप्लाई है। एकदम लास्ट वार्निंग, बस इसके बाद वार्निंग दूंगा, इसके बाद बाहर जाओगे और फिर क्लास में सदा नहीं आओगे मेरी, फिर कॉलेज से ही बाहर आप। ओके, हाँ मैं वही समझा रहा हूं, फिर आप बाज नहीं आ रहे। देखो ऐसा है, मैं किसी को नहीं चाहता कि इसको ऐसा बहुत बड़ा नुकसान हो। प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को नुकसान हो ऐसा और आपको बहुत मुश्किल हो जाए अपने जीवन में। तो प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो और बिल्कुल शोर मत मचाओ। मैं आपको पूरी ब्रेक्स दूंगा बीच में, ओके, एनफ टाइम दूंगा। और आपको किसी को भी अगर आपके वो कौन से हैं, क्या कहते हैं, हु इज़ द क्लास कोऑर्डिनेटर? नहीं, आप बैठ जाओ, आप हैं। और कभी भी आपको लग जाए कि आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं या 5 मिनट का वो चाहते हैं, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा कुछ टाइम ले लूँ तो आप मुझे बोल दो, ओके। जब भी आप लगे आप उसकी तरफ देखना शुरू कर दो, भैया अब थोड़ा मुझे रिलीफ चाहिए, बस इतना कर सकते हो आप। विदाउट अटरिंग एनीथिंग फ्रॉम योर माउथ, लुक एट योर क्लास कोऑर्डिनेटर एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट अ स्मॉल ब्रेक, ओके फाइन। नाउ जस्ट फोकस इट हियर अगेन, आ जाओ वापस, ओके। इफ यू कोऑपरेट विद मी यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट इफ यू डोंट कोऑपरेट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ओके। जस्ट फोकस हियर नाउ। तो अब पहला देखते हैं, देखो पहला मेथड क्या है। स्टेप 1, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर बेसिक। पहले हमें बेसिक ईपीएस निकालना है, ओके। तो बेसिक ईपीएस क्या है? कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है? 25 लाख, और कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 5 लाख, ओके। 5 लाख शेयर होल्डर थे। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10 रुपए का डिविडेंड मिलता है। तो दिस प्रॉफिट वॉज बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स, ओके। अगर आप क्वेश्चन में जाते हैं यहां पर, सो कंपनी रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, ओके। सो दैट मीन्स कि ये कंपनी ने प्रॉफिट निकाल दिया। अब तो कंपनी को पहले प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा ना, ओके। फिर निकलेगा प्रॉफिट अवेलेबल टू फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमने पहला काम ये करना है। तो पहला काम हमने क्या करा, ये 5 लाख आपके 50,000 टोटल जो है 10 रुपए, यानी 5 लाख रुपए आपका जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 50,000, ओके। और हर आदमी को कितना डिविडेंड मिल रहा है? 10 रुपए। तो टोटल डिविडेंड कितना जाएगा? 5 लाख। अगर आप ये चेक करो, यहां पर वापस मैं ले जाता हूं, टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं कंपनी के? 50,000 दिया हुआ है, और कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है? 10 रुपए। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? 5 लाख। तो हमने पहले काम क्या करा कि ये डिविडेंड निकाल दिया इसका। तो ये डिविडेंड निकाल दिया, तो इसका मतलब बाकी जो शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कितना मिला? बचा 20 लाख। वो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब उनके लिए हमने इसको 20 लाख को 5,000 से डिवाइड करा, तो बेसिक ईपीएस कितना आ गया? 4 रुपए। यानी 20 लाख का प्रॉफिट और 5 लाख शेयर होल्डर, तो पर शेयर होल्डर के अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? सॉरी, ईपीएस कितना आएगा? 4 रुपए। एंड दिस इज कॉल्ड बेसिक। अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट काम, कंप्यूट द इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिबल
अब सब सारे देखेंगे एक एक करके, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ओके। अब जैसे इसको भी मुझे डार्क करना चाहिए, बट एनीवे ये भी डार्क है, समझ लो है, दिस वन इज डार्कर, ओके। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो अब मुझे देखो कि जो इंटरेस्ट है, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, ओके। और कंपनी कितना डिक्लेयर करती है इंटरेस्ट, 8%, तो 80,000, ओके। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डिबेंचर होल्डर अगर शेयर होल्डर बन जाएंगे तो इनको ये 8% मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तक ये शेयर होल्डर रहेंगे तब तक तो ये, सॉरी, डिबेंचर होल्डर रहेंगे तब तक तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको ये 8% मिलना बंद हो जाएगा, ओके। अब उससे कंपनी को कितना फायदा होगा, तो कंपनी को फायदा कितना होगा, 80,000, लेकिन कंपनी का टैक्स रेट 30% है, तो कंपनी को एक्चुअल फायदा कितना होगा, 56,000, ओके फाइन, क्योंकि 1 माइनस टी इज द टोटल कॉस्ट टू द कंपनी। हाँ, दोबारा सुनिए, देखो क्या होता है, जो आपका जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पे या कोई भी लोन लिया कंपनी ने, वो आपका टोटल खर्चा कम कर देता है कंपनी का, क्योंकि अगर कंपनी का रेट 30% टैक्स है, तो अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, और इसको साफ करते रहा करो मैडम जी, यहां किसको बोला था मैंने लास्ट टाइम, वेयर इज जानवी, किसको बोला था मैंने, तो ये इसको साफ करो, जो भी यहां बैठेगा, चाहे जानवी, किरण या कोई भी हो, वो साफ कर देगा इसको, ओके। Okay, I am saying, suppose for a company has taken a loan, okay, fine, loan or debentures, whatever, okay, and it is paying 10% rate of interest, and suppose company tax rate is 25%, okay, so company की कॉस्ट कितनी है, 10%, नहीं, कंपनी की कॉस्ट है 10% 1 minus T, which is 10% 1 minus 0.25, which is 7.5%। कंपनी की जेब से सिर्फ 7.5% जाता है, क्योंकि 25% तो टैक्स डिडक्टेबल है, ओके। जब टैक्स लगता है तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कम करने के बाद टैक्स लगता है ना, तो उसको इसकी वजह से उसका टैक्स कम हो जाता है कंपनी का। देखो, कंपनी को जब टैक्स पे करते हैं, इंटरेस्ट के बाद टैक्स पे करना पड़ता है। अगर कंपनी ने इंटरेस्ट ना दिया होता तो उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता। देखो, दोबारा सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग पूछते हैं क्यों, और मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, अगर आपने ना जवाब दिया तो आपको बाहर जाना होगा। देखो, कंपनी ने लोन लिया, एक कंपनी ने लोन लिया हुआ है, एक कंपनी ने बिल्कुल कोई लोन नहीं लिया हो। जिस कंपनी ने लोन लिया हुआ है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जिस कंपनी ने लोन नहीं लिया उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो जिसने लोन, सपोज दोनों इक्वल एक जैसा प्रॉफिट कमाती है, दोनों 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाती है, तो किसका टैक्स ज्यादा होगा, जिसने लोन लिया हुआ है, जिसने लोन नहीं लिया हुआ। जिसने लोन लिया हुआ है उसका टैक्स जो है कम होगा, और जिसने टैक्स लोन लिया हुआ है, और हाँ, जिसने नहीं लिया उसका ज्यादा होगा, ओके फाइन। ये समझ आ गई बात। तो दैट मीन्स जब आदमी इंटरेस्ट देता है तो उसका टैक्स कम हो जाता है। जस्ट हाँ, एक सेकेंड, ओके फाइन। ये समझ में आ गया आपको, ये फिर आया, समझ में नहीं आया, इंटरेस्ट देना भी टैक्सेबल इनकम होता है ना। अब जितना है वो समझ करो, बाकी बात में क्वेश्चन जो समझ आया वो समझ आ गया आपको, बस उसी अब अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत चलाओ उसे, और आदमी कंफ्यूज होता है, ओके। इज दिस क्लियर? जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसका समझ आ गया ना, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो, फिलहाल बनो, उसको बाद में पूछेंगे। इज दैट ओके? ओके, सो इसका मतलब कंपनी को कितनी बचत होगी, 80,000 या 56,000? 56 बचत होगी ना, क्योंकि देखो 80,000 तो इंटरेस्ट बनेगा डिबेंचर होल्डर्स का, किसका, डिबेंचर होल्डर का, लेकिन कंपनी की जेब से तो 56,000 जा रहा था ना, तो वो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इतनी बचत हो जाएगी। ठीक है, अब इतना समझ लिया हमने, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ये कितने हैं,
1000 25 रुपये पे 25 मिलते हैं, 1000 के पीछे 25 शेयर्स, तो 10 लाख के डिबेंचर्स हैं और इसका मतलब 1000 डिबेंचर्स होंगे। ओके, ये हमने क्या करा है, ये हमने फॉर्मूला लगाया है यहां पर, और ये 10 लाख डिवाइड बाय 1000 कितने आ गए, 1000 डिबेंचर्स कंपनी के पास हैं, तो टोटल एडिशनल शेयर्स कितनी कंपनी इशू करेगी, 25,000। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस। देखो अब कंपनी के पास अगर 10,000 कितने डिबेंचर्स हैं, 1000, और पर डिबेंचर कितने शेयर देने होते हैं, 25, तो कंपनी को नए शेयर इशू कितने बढ़ने पड़ेंगे, 25,000 शेयर नए इशू कर देगा और डिबेंचर खत्म हो जाएंगे कंपनी के, बिकॉज ईच 1000 डिबेंचर, जो 1000 रुपए का डिबेंचर है उसको 25 शेयर मिलेंगे, और टोटल डिबेंचर्स कितने हैं, 1000। ये जो फिगर है 10 लाख डिवाइडेड बाई मैंने 1000 करी तो 1000 डिबेंचर्स आ गया। इज दैट ओके? तो इसका मतलब टोटल जो शेयर इशू करनी पड़ेगी कंपनी को, 25,000 शेयर इशू करने पड़ेगी। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, फाइन। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी के टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 50,000, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, और हर शेयर होल्डर को 2 शेयर मिलेंगे इक्विटी, तो कंपनी को कितने शेयर देने पड़ेंगे, 1 लाख। अभी 50,000 डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, और अगर कन्वर्ट हो गए तो 1 लाख। ओके, तो हमारे पास क्या कहते हैं, डिबेंचर्स 25,000 हो गए जो शेयर होल्डर्स बन गए थे, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे उनको 1 लाख मिल गए, सपोज ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अब आता है लास्ट मेथड जो कि है ऑप्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसका ब्रेक कर देंगे हम। ओके, क्योंकि अब थोड़ा सा रह गया। देखो कैश रिसीव फ्रॉम, अब 1 लाख स्टॉक ऑप्शंस हैं। स्टॉक ऑप्शंस कितना है ये देखो, स्टेप 4 वाला एक बार बताएंगे। एक क्या जी, स्टेप 4, किसका, स्टेप 4 हाँ अभी चलते हैं, वापस चलेंगे, एक बार फिर दोबारा करेंगे, डोंट वरी, क्या अदरवाइज लोग परेशान हो जाएंगे। जस्ट लिसन टू मी अगेन। नाउ स्टॉक ऑप्शंस, प्लीज फोकस हियर, प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर एंड रीड हियर। स्टॉक ऑप्शन कितने हैं, 1 लाख स्टॉक ऑप्शंस हैं। ओके, कितने प्राइस पे वो शेयर खरीद सकते हैं, 50 रुपए। ओके, और एवरेज स्टॉक प्राइस कितना, 80 रुपए चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर ये 50 रुपए कंपनी को दें तो इनको कितने शेयर मिल जाएंगे, 1 लाख। तो कंपनी का पैसा कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। देखो 50 रुपए का शेयर है और 1 लाख है, और ये सारे के सारे अपने शेयर कन्वर्ट, सारे ऑप्शंस कहते हैं कि हमें शेयर चाहिए, तो इन लोगों को कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा, 50 लाख रुपए, है ना, यही है ना 50 लाख, यानी 50 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, सो 50 लाख, तो कंपनी का 50 लाख आ जाएगा। ओके फाइन, अब कंपनी का पैसा आ गया। और अगर कंपनी जो है, अब देखते हैं व्हाट इज द ट्रेजरी स्टॉक मेथड, इसको हमने यूज करना है। ओके, तो कैश रिसीव कितना आया, 50 लाख, यहां की बात 50 लाख। अब शेयर्स परचेज विद द कैश। नाउ कंपनी के शेयर इस टाइम 80 रुपए का चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर कंपनी अपने शेयर खरीद लेती, सपोज मानो कंपनी अपने शेयर्स खरीद लेती है, आप दोनों बाहर जाने वाले हो। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, अगली बार ये बिजली कड़केगी और कड़क जाएगी, बता रहा हूं, और वो अंदर बाहर हो जाएंगे। नहीं आप बैठे रहो, आप बाहर जा सकते हो, ऐसे मुझे डोंट टेल मी किसको बाहर निकालना। ओके, मैं बार बार दे रहा हूं वार्निंग, और एक दिन वो वार्निंग जो है एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो अभी क्या है, टोटल शेयर रीपरचेज। अब 80 रुपए का शेयर चल रहा है मार्केट के अंदर, तो कंपनी अगर अपने शेयर खरीद ले, अगर कंपनी अपने ही शेयर खरीद ले तो कितने शेयर वो खरीद पाएगी, 80 रुपए का मार्केट में शेयर कर रहा है, पैसे आगे 50 लाख। इस 50 लाख रुपए जो मिला था शेयर होल्डर से, जो स्टॉक ऑप्शन से, उनको शेयर कितने वापस आ जाएंगे, इतने। अब ये देखो कि ये जो हैं, आपको इनको 1 लाख शेयर मिलने थे, लेकिन इसका मतलब कंपनी इफेक्टिवली 37,500 शेयर दे रही है। कंपनी शेयर कितने दे रही है एडिशनल, क्यों, इतने शेयर तो कंपनी ने वापस खरीद लिए मार्केट से, तो कंपनी फ्रेश इशू कितनी कर रही है, 37,500। दिस मेथड इज कॉल्ड द ट्रेजरी स्टॉक मेथड। जब कंपनी अपने ही शेयर खरीद लेती है तो दो स्टॉक्स बिकम्स ट्रेजरी स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। ओके, you can always go through the Google and read this, okay, at yourself. So that means कंपनी को एडिशनल शेयर्स कितना इशू करना पड़ेगा, 37,000। हैव यू गॉट इट, ये समझ में आया? 37,000
ये 37,500 कैसे आया? ये तो आ गया, बट ये कैसे? एक सेकंड रुक जाओ, आपको किसको समझ नहीं आया ये? हाँ, और किसी को समझ नहीं आया बताओ, हाथ रेस करो। देखो कंपनी के पास, हाँ एक सेकंड, कंपनी खरीद नहीं रही है, दिस इज वी आर जस्ट थिंकिंग। अब मैं बताता हूं उसको क्यों सोच रहे हैं। कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? 50 लाख, ये समझ आ गया। अगर वो 1 लाख स्टॉक ऑप्शंस वाले कहते हैं कि हम अपने शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उनको कंपनी को पहले कितना पैसा देना होगा? 50 रुपए। तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? 50 लाख रुपए। अगर फर्ज करो कंपनी करे ना करे उससे कोई मैटर नहीं करता, कंपनी करेगी भी नहीं, लेकिन फर्ज करो ये 50 लाख कंपनी ने कितने शेयर खरीद पाएगी मार्केट से? 62,500। इज दैट ओके? इतने आ जाएगा। तो कंपनी को फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा? सिर्फ 37,500 अगेंस्ट दो स्टॉक ऑप्शंस। इज दैट ओके? हम ये देख रहे हैं कि कंपनी का जो पैसा आएगा तो कंपनी को एडिशनल शेयर्स कितने देने पड़ेंगे। एक सिर्फ मैकेनिज्म है, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है, ये कोई एक्चुअल में नहीं हो रहा है। ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट वंस वी कैलकुलेट द डाइल्यूटेड ईपीएस। तो कंपनी को एडिशनल शेयर्स 37,500 देने पड़ेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं अब? लास्ट स्टेप, देन वी कैन गो फॉर ब्रेक। ओके, तो कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स थे। ओके, कंपनी ने 25,000 डिबेंचर्स के शेयर बन गए और प्रेफरेंस शेयर्स के बन गए शेयर्स। ओके फाइन, 1 लाख ही है ना? हाँ, और एडिशनल शेयर्स जो स्टॉक ऑप्शंस के थे वो 37,500 थे। ओके, अगर हम ये देखें प्रेफरेंस शेयर्स कितने बने थे? हाँ 1 लाख ही बने थे एडिशन। ये देखो, ये एक आ रहा, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, उनके 2 कर रखा तो 1 लाख हो गया। ठीक है, अच्छा ये आ गया। तो टोटल कंपनी के शेयर कितने हो गए? अगर ये सारी ऑप्शंस दे आर एक्सरसाइज्ड, then the company's total shares will jump from 5 lakh to 6,62,000। ओके, तो हम क्या करते हैं अब? हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना था। वापस चलते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं, लास्ट स्टेप। तो कितना है प्रॉफिट? कितना था? 25 लाख। अब कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना नहीं, वो तो चले गए। कंपनी को 56,000 रुपए का फायदा हो जाएगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, नहीं देने पड़ेंगे, तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे 6,62,000 से, तो कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा, यानी 25,56,000 डिवाइडेड बाई 6,62,500 वील गेट अ डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ 3 रुपीज। यहां आ जाओ, ये समझ में आई? जस्ट गो थ्रू। जिसको नहीं समझ में आई प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल एक्सप्लेन दैट बट आफ्टर द ब्रेक। ओके, सिर्फ ब्रेक जाने से पहले हम 2 मिनट हम और डिस्कस कर पाएंगे। कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हो तो किसको अभी नहीं समझ आया पूरी तरह से? जस्ट रेज हैंड। एक सेकंड, आपका लेते हैं, आपका केस लेते हैं। सबको समझ में आया? एवरीबडी हैज फॉलोड? आपको भी आ गया है? अब क्वेश्चन पूछो आप। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है? थोड़ा तेज बोलो। कंपनी 1 लाख स्टॉक को सर एक्सरसाइज करती है, जिससे उसको 50 रुपीज मिलते, फिर वो 80 में क्यों खरीदती है? देखो ऐसा है, अभी मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? शेयर प्राइस कितना चल रहा है मार्केट के अंदर? ओके, ये सिर्फ मैकेनिज्म है कि अभी मार्केट में कितने रुपए का शेयर चल रहा है? 80 रुपए का। अगर कंपनी को के पास 50 लाख आ जाएं तो कंपनी कितने शेयर खरीद पाएगी मार्केट से? अपने ही शेयर। अगर ये निकालना हो, बस ये सोचो कि मुझे निकालना है कि कंपनी का 50 लाख रुपए आ गया और कंपनी का अपना शेयर 80 रुपए का है। ओके, तो ये हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि वो 50 लाख से कितने शेयर खरीद, 50 यानी कि वो जितने आया 62,500 आया था ना आंसर। सो कंपनी 62,500 शेयर्स। अब ये ब्रेक है, जो जाना चाहता है जा सकता है। सो वी विल मीट एग्जैक्टली एट 4:05, 4:05 पे वापस। जस्ट होल्ड ऑन, अभी ये है ना 4:15 पे सब वापस आ जाओ। दिस इज द टाइम ऑफ रिटर्निंग। ओके, समझ आया?
I'm going to just explain the treasury options again, okay? Just focus here. Now, company के total common outstanding shares कितने थे? When we started, 5 lakh shares. Now, company got 50 lakh rupees from the stock options, guys. So that means company can buy back its own shares. Once company buy back its own shares, that means company's share outstanding will drop to 4,37,500. क्योंकि कंपनी ने 80 रुपए के शेयर खरीद लिए मार्केट से, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगी, isn't it? Now company is going to issue shares to the stock options 1 lakh, 1 लाख उनको देगी, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी और 25,000 डिबेंचर्स को देगी. तो टोटल कितना आ जाएगा? 6,62,500, which is the same which I have done here. So this is another way of looking it. So that these stocks which the company has purchased is called treasury stocks. These are called what? Treasury stocks. इसको क्या बोलते हैं? Treasury stocks. So you know, you might have seen that company always buy back its own shares also. You know, there is a provision in the Companies Act that company can buy back its own shares. About 25 years back, this provision was not there, and company could not buy its own shares. Please, I am explaining now, and just focus here only, okay? Fine. पहले the company could not buy its own shares, so there was a kind of a companies are not allowed to buy its own shares. Okay. Now company can buy back its own shares. Why do the companies buy back their shares? Any reason for that? Their overall valuation increases by share buyback. हाँ, एब्सोल्युटली. देखो ये जो कह रहा है वो अल्टीमेट रिजल्ट बता रहा है, लेकिन क्या है कि कंपनी जब ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ओके, कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा है, उतना चाहिए ही नहीं कंपनी को, बट कंपनी के पास बहुत कैश है, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स खरीद लेती है, क्योंकि कंपनी डजंट रिक्वायर मोर मनी नाउ. कंपनी इज सिटिंग इन कैश पाइल and company is over capitalized. Company wants to boost its earning per share. चाहती है कंपनी की शेयर वैल्यूएशन बढ़ जाए, जैसे ही बता रहे हैं. जब कंपनी के शेयर कम हो जाएंगे तो ईपीएस बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ जाएगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर. सो कंपनीज ट्राई whenever they are sitting with a huge amount of cash with them and they feel that they don't require the capital. उन्होंने कैपिटल तो रेस कर ली, बिकॉज हो सकता है कि जब उनको एक्सपेंशन करना था उनको कैपिटल चाहिए थी, अब कंपनी को कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स. जो कंपनी बाय बैक कर लेती है उनको वो कैंसिल नहीं करती है, उनको वो ट्रेजरी स्टॉक्स करके अपने खजाने में रख लेती है, अपने तिजोरी में रख लेती है, अपने ही पास रख लेती है. ये ट्रेजरी स्टॉक्स है हमारे पास, जब हमें दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से शेयर इशू करेंगे. अदरवाइज दे हैव टू गो टू द they have to call the meeting of the general body meeting and ask the shareholders to increase their how many shares they can issue further. कंपनी को परमिशन लेनी पड़ती है अपने शेयर होल्डर से जब भी वो फ्रेश इशू निकालती हैं. अब कंपनी को वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास वो 62,500 के शेयर जो है इसके ट्रेजरी स्टॉक में पड़े हुए हैं. इसको बोलते हैं दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक्स. ओके, दे ऑलवेज रिमेन इन द ट्रेजरी चेस्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी कैन ऑलवेज री इशू देम इन द मार्केट अगेन. जब वो करती हैं तब. इस केस में करा नहीं है, इसमें सिर्फ हमने एजम्पशन लिया कि अगर वो करेंगे तो फिर कंपनी के शेयर अगर देखें तो कंपनी का जो ईपीएस होगा वो उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा. 1 लाख शेयर नहीं बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे सिर्फ कितने? 1 लाख माइनस 62,500, दैट इज 37,500. सो दिस इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन इट